Assalamualaikum class. I hope all of you are doing well. So today our topic is history of classification systems and we are studying our chapter number 3 which is biodiversity. So why we have to study history of classification? Because in order to study the classification systems we should know from which from where the classification system arises and who are the biologists or taxonomists who are involved in the classification system. So it is very essential for us to know the stepwise categories that how this system was fully developed. First of all, Aristotle played the earliest role in the history of classification. He proposed earliest known system of classification that is that divides the living organism into basic two categories. First was plantae and second was animalia. He just categorized them into two basic categories. Next, further, the in 700 Abu Usman Omar al-Hajjahiz described the characteristics of 350 species of animals in his book, and further he wrote a lot about the life of ants. This was a contribution of Abu Usman Omar al-Jahiz. Further in 1172, Ibn Rushd Averroes translated Aristotle book. उन्होंने जो था एरिस्टोटल की बुक को ट्रांसलेट किया which was De Anima on the Souls in Arabic. And after that, in the end of 15th century, many biologists had started working on classification methods. Okay, जब हमारे पास ये सारे आइडियाज़ आ गए इन सब टेक्सोनमिस्ट ने इन सब बायोलॉजिस्ट ने जो था हमारे पास क्लासिफाई करना शुरू किया इनटू फर्दर ग्रुप्स एंड देन सब मॉडिफिकेशंस आती गई सब ने और कंट्रीब्यूट करते गए तो एट दैट टाइम there were so many taxonomists who were very keen to play their own role in classifying the organisms. Further, Carolus Linnaeus divided nature into three kingdoms. First was mineral, then vegetable, and at the last, animal. He classified the organism into three basic kingdoms, and then he also proposed five ranks in classification: class, order, genus, species, and variety. This was the basic thing that was proposed in the history that that is still providing their benefits in the field of classification. Linnaeus is best known for his introduction of method still used to formulate the scientific name of every species. अब वो हमें ये कह रहे हैं कि लीनियस का जो हमारे पास सबसे ज़्यादा बेस्ट नाउन मेथड है वो ये है कि आज तक हम जो यूज़ करते आ रहे हैं कि हम साइंटिफिक नेम कैसे चूज़ करते हैं किसी स्पीशी का जीनस कैसे हम उसका चूज़ करते हैं ठीक है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि स्पीशी और जीनस नेम हम उसको कैसे चूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा हुआ है कि हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर में किस तरह से एक साइंटिफिक नेम हमारे पास होता है जैसे अनियन का हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड वाइड उसका एलियम सीपा जो है वो नेम जाना जाता है ताकि हमारे लिए ईजी हो जैसे हर एक एरा के अलग अलग नेम्स होते हैं तो इस तरह से लीनियस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया कि एक नेम हमारे लिए रख दिया ताकि हम हर जगह उसी नेम को लेकर चलें ठीक है नेक्स्ट देयर इज़ एन ओवरव्यू about the further contribution of some more taxonomists. First is Andrea Castellpino. He 1519 to 1603 AD. He divided plants into 15 groups and called them genera. उसने plants को 15 groups में divide किया which him called as genera. Then John Ray 1627 to 1705 AD published important works on plants classification. Then Augustus Ravenus 1652 to 1723 he introduced the taxon of order. अब आप देख रहे हैं किस तरह से सब अपने जो है वो रोल प्ले करते जा रहे हैं फर्स्ट ने जेनरा 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया प्लांट्स को विच इज ही कॉल्ड एज जेनरा देन
Second, classify the publish some important work on plants classification. Then they are modifying them as by introducing the taxon of order. Then Tontford 1656 to 1708 AD introduced the taxa of class and species. At the last, Carolus Linnaeus 1707 to 1778 AD grouped स्पीशीज़ अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स। ये हमारे पास एक बेसिक आया था कि किस तरह से हम लोगों ने ग्रुप किया था स्पीशीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया था, कीन डिस्क्रिप्शन नहीं देखी थी, बल्कि उन्होंने डिवाइड कर दिया था अकॉर्डिंग टू द फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स। जिस तरह से उनकी अपेयरेंस थी, उनको उसमें जो सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही थी, उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली उनको क्लासीफाई कर दिया था, उनको डिवाइड कर दिया था। ये हमारे पास एक ओवरव्यू है कि किस तरह से हमारे पास क्लासिफिकेशन में कैटेगरीज बन रही हैं, किस तरह से उसको क्लासीफाई किया जा रहा है। नेक्स्ट, प्रेफरेंस ऑफ बायोलॉजिस्ट। व्हाट वर द प्रेफरेंस ऑफ बायोलॉजिस्ट, व्हाट इज़ प्रेफर्ड इन द today's generation, in today's work, in the modified world। जिससे पहले तो हमारे पास उन्होंने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ ओनली फिजिकल अपेयरेंस, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है, तो अब हम देखेंगे कि अब किस तरह से डिवीजन हो रही है। बायोलॉजिस्ट प्रेफर सच अ सिस्टम डेट कैन प्रोवाइड। अब वो बायोलॉजिस्ट कौन सा सिस्टम प्रेफर करते हैं, डेट प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द बेसिक डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब वो बायोलॉजिस्ट प्रेफर करते हैं कि वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे सकें इस बारे में कि डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं या क्या डिफरेंसेस हैं। वो उसको एक्सटर्नली भी देखते हैं, इंटरनली भी एग्जामिन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू टू किंगडम्स। अब जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम है, तो हमारे पास टू किंगडम्स में डिवाइड किया गया। फॉर एग्जांपल एनिमेलिया और प्लांटी। ठीक है। जैसे एनिमल जो है वो दे कैन वॉक एंड ईट, बट प्लांट कैन नॉट वॉक एंड ईट, दे स्टे इन द सेम प्लेस एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। देन नाउ टेक्सोनॉमिस्ट एग्री ऑन 5 किंगडम सिस्टम। अब जो है, जो हमारे पास एडवांसमेंट आई है बिल्कुल न्यू, उसमें ये है कि जो सबसे ज़्यादा माना जाता है वो 5 किंगडम सिस्टम को माना जाता है। वी विल सी द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड ड्रॉबैक्स इन 2 किंगडम एंड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि व्हाट आर द division in 2 kingdom classification and what are the and 3 kingdom classification and what are the defects or problems or drawbacks that that is pointed out in today's era. Okay, this is a diagram of 5 kingdom classification that includes bacteria, protists, plants, animals and fungi. This is an overview. First of all, जब हमने पढ़ा था तो सिर्फ हमने plants और animal में divide किया था. Then in the 5 classification system they also included fungi, protists and bacteria. Okay, thank you class.